یہ جنگ تلواروں سے نہیں، دماغ اور چالاکی سے لڑی جا رہی ہے۔ ایک طرف نرگس تجربہ کار، ذہین اور روایتی ساس جو اپنے بیٹے سلمان کی شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف حنا، حاضر دماغ، سمجھدار اور محبت کرنے والی لڑکی جو سلمان کے دل کی ملکہ تو بن چکی، مگر نرگس بیگم کی سلطنت میں داخل ہوتے ہی ایک نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ ایک ایسی شطرنج کی بازی ہے جہاں ہر چال نپی تلی، ہر جملہ ایک تیر اور ہر وار فیصلہ کن ہوگا۔ کیا حنا چالاک ساس کی سازشوں کو مات دے پائے گی یا یہ جنگ اس کے رشتے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گی؟ سلمان نے تمہارے لیے ایک بہت اچھی لڑکی پسند کی ہے، نیک، شریف اور ہمارے خاندان کے معیار کے مطابق۔ اب بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ امی، میں پہلے ہی کسی کو پسند کر چکا ہوں۔ کیا؟ کس سے اور کب؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا نام حنا ہے امی۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، عزت دار، سلیقہ مند، اور سب سے اہم بات، وہ آپ کی بہت عزت کرے گی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہاری شادی اپنی مرضی سے کرنی ہے اور میرا فیصلہ آخری ہوگا۔ میں نے تمہاری پرورش کسی عام لڑکی کے لیے نہیں کی۔ میں اپنے خاندان کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ امی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار حنا سے مل لیں۔ اگر آپ کو وہ پسند نہ آئی تو میں آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ میں صرف اپنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ آپ کی خوشی کے لیے بھی سوچ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی فیصلہ نہ ہو جو ہمیں بعد میں تکلیف دے۔ اگر آپ کو حنا پسند نہیں آئے گی تو میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ خود اسے دیکھیں اور سمجھیں کہ وہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، میں مل لوں گی، مگر دیکھتی ہوں کہ وہ کتنی عقل مند ہے۔ نرگس بیگم ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی ہے۔ ان کے چہرے پر روایتی وقار کے ساتھ ایک خاص انداز کی سختی ہے۔ سامنے حنا مودب انداز میں بیٹھی ہے، ہاتھ گود میں رکھے، مگر اس کی آنکھوں میں خود اعتمادی جھلک رہی ہے۔ سلمان پاس کھڑا بے چینی سے اس ملاقات کا نتیجہ سننے کے انتظار میں ہے۔ تو تم ہو حنا؟ تمہاری اور سلمان کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ جی آنٹی، میں ہی حنا ہوں، یونیورسٹی میں آنٹی۔ ہم ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے اور وہیں ہماری دوستی ہوئی۔ دوستی؟ کچھ اور؟ دوستی وہی ہوتی ہے جس میں عزت ہو، اور سلمان ہمیشہ عزت سے پیش آئے ہیں۔ ہماری بات چیت سمجھداری اور احترام پر مبنی تھی، کوئی بے ادبی یا غیر ضروری تعلق نہیں تھا۔ اچھا، تو تم نے سلمان کو پسند کیا، سلمان نے تمہیں؟ پسند کسی ایک کی نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور عزت دینے کا نتیجہ تھا۔ سلمان نے مجھے ہمیشہ عزت دی اور میں نے ان کی سوچ اور رویے کو پسند کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو بہتر طور پر جانا اور پھر یہ فیصلہ لیا۔ خاندان میں شادیاں بزرگوں کے فیصلوں سے ہوتی ہیں، محبت کے نام پر نہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمارے خاندان کے اصولوں اور طور طریقوں کے مطابق چل پاؤ گی؟ آنٹی، ہر گھر کے اصول مختلف ہوتے ہیں اور میں انہیں سیکھنے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن میں چاہوں گی کہ میرے جذبات اور خیالات کو بھی سمجھا جائے۔ رشتے صرف سمجھوتوں سے نہیں بلکہ دو طرفہ عزت اور محبت سے چلتے ہیں۔ اچھا، کھانے پکانے میں کیسی ہو؟ ساس کا دل جیتنا ہو تو چولہے پر مہارت ضروری ہے۔ کھانے پکانے میں اچھی ہوں آنٹی، لیکن دل جیتنے کے لیے صرف کھانے کی نہیں بلکہ محبت اور خلوص کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نیت اچھی ہو تو سالن میں نمک کم بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خلوص اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ نرگس بیگم خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ حنا کے اعتماد سے چڑھ تو رہی ہے، مگر اس کی حاضر جوابی سے متاثر بھی ہے۔ سلمان گہری سانس لیتا ہے۔ یہ ملاقات آسان نہیں تھی، مگر حنا نے پہلا امتحان کامیابی سے دے دیا۔ رات کا ٹائم ہے اور سلمان کی ماں اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں سازش ہے،
क्योंकि वो अपने बेटे की शादी इस लड़की से यानी हैना से नहीं करवा। अम्मी, खैरियत है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बेटा एक दिन मेरे फैसलों पर सवाल उठाएगा। ऐसी कोई बात नहीं उम्मी, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप भी हिना को पसंद करें जैसे मैं करता हूं। सलमान, तुम जानते हो ना कि एक माँ अपनी औलाद के लिए हमेशा सबसे बेहतर ही चाहती है। मैंने तुम्हारे लिए जो लड़की देखी है वो हमारे खानदान के उसूलों के मुताबिक है, हमारी रवायत को समझती है और सबसे बढ़कर मुझे दिल से कबूल करेगी। अम्मी, हिना भी आपको दिल से कबूल करेगी, बस अब एक मौका तो दे। बेटा, तुम मर्द हो, तुम्हें अंदाजा नहीं कि एक औरत को दूसरे के घर में जाकर कैसा महसूस होता है। मुझे लगता है कि ये लड़की तुमसे शादी के बाद तुम्हें बदल देगी, शायद तुम्हें मुझसे दूर कर दे। अम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। हिना कभी ऐसा नहीं करेगी। बेटा, मैं एक माँ हूँ और एक माँ का दिल सब कुछ महसूस कर लेता है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं इसे कबूल करूं, तो पहले मुझे ये साबित करके दिखाओ कि वो इस घर में मेरे उसूलों के मुताबिक चल सकती है। मतलब ये कि मैं हिना का इम्तिहान लूंगी। अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो मैं खुद से दिल से अपना लूंगी। सलमान शिशु पंज में पड़ जाता है। वो जानता था कि माँ आसान इम्तिहान नहीं लेगी, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो सोच में पड़ जाता है जबकि नरगिस बेगम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। उनकी पहली चाल कामयाब जा रही थी। सुबह की रोशनी पूरे घर में फैल रही है। सलमान थके हुए कदमों से अपने कमरे से बाहर निकलता है। जैसे ही वो लाउंज में आता है, उसकी नजरें सामने के मंजर पर जम जाती हैं। सामने माँ सूफे पर बैठी हैं और उनके बराबर में सायरा बैठी है, मगर ये वो आम सी रवायती लड़की नहीं थी जिसे सलमान ने कभी सोचा था। बेटा, कैसी लगी तुम्हें सायरा? देखो, कितनी समझदार, बावकार और खानदानी लड़की है, हमारे मेयार के बिल्कुल मुताबिक। माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने अपनी जिंदगी के लिए पहले ही फैसला कर लिया है। आप जानती हैं, मैं हिना को पसंद करता हूँ। हिना, वही लड़की जो ना हमारी रवायत को समझती है, ना हमारे घर के उसूलों को। सलमान, तुम हकीकत से क्यों नजरें चला रहे हो? हिना को तो तुम्हारे घर के माहौल में ढलना भी नहीं आता। माँ, अपने हिना को सही से जाना भी नहीं। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि सबको खुश रखे। हाँ, मैंने जाना है। वो लड़की जिसके ख्यालात ही हमसे मील नहीं खाते, जो अपनी मर्जी की मालिक है, जिसे रवायत का पास रखने में कोई दिलचस्पी नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि वो इस घर को अपना घर मानेगी? सलमान बेटा, हमने हमेशा अपनी इज्जत और वकार को सबसे पहले रखा है और हिना इस खानदान के उसूलों में फुट नहीं बैठती। माँ, ये सब दकियानूसी बातें हैं। इंसान की खूबी उसकी सोच में होती है, न कि उसके अंदाज और तरीकों में। हिना दिल की अच्छी है और मैं जानता हूं कि वो सबको अपना लेगी। ये तुम्हारी भूल है और मैं तुम्हें ऐसी गलती नहीं करने दूंगी। सलमान, देखो, सायरा को देखो, कितनी मुहज्जिब, कितनी बाइज्जत, कितनी सुलझी हुई है। वो तुम्हारे साथ खड़ी हो तो खानदान में हमारी इज्जत बढ़ेगी, न कि लोगों को हमारे फैसलों पर उंगली उठाने का मौका मिलेगा। माँ, इज्जत और मोहब्बत दो अलग चीजें हैं। अगर शादी में मोहब्बत ना हो तो क्या इज्जत हमेशा कायम रहती है? बेटा, मोहब्बत वक्ती होती है, लेकिन इज्जत हमेशा रहती है। मैं माँ हूँ, तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। मेरी मानो, हिना को भूल जाओ और सायरा को कबूल कर लो। वो तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारे खानदान के लिए भी सबसे बेहतरीन इंतखाब है। माँ, अब मुझे जज्बाती तौर पर मजबूर कर रही है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर मैं अपनी खुशियों से समझौता नहीं कर सकता। हिना मेरी जिंदगी है और मैं इसे खोना नहीं चाहता। सलमान खामोश हो जाता है।
इसका दिल और दिमाग एक कशमकश में फंस चुके हैं। माँ ने एक नया जज्बाती दबाव डाल दिया था और अब वो फैसला करने की उलझन में था कि किस तरफ जाए, अपनी मोहब्बत की तरफ या अपनी माँ की ख्वाहिश की तरफ। रात का वक्त है, एक पुरसकून मगर उलझन भरा माहौल। सलमान और हना एक पार्क में मिलते हैं। दोनों के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां हैं। सलमान की नजरें हना पर जमी हैं, जबकि हना कदरे बेचैन लग रही। हिना, हम कब तक दूसरों की मर्जी का इंतजार करते रहेंगे? हमारे घर वाले कभी भी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। वो हमेशा कोई ना कोई नया मसला खड़ा कर देंगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हिना। हमें खुद अपनी किस्मत का फैसला करना होगा। सलमान, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम वाकई ये सोच रहे हो कि हम? हाँ हिना, हमें छप कर शादी करनी होगी। मैं तुम्हें कहीं और रखूंगा जहां मां को पता ना चले। मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन मां को भी नहीं खोना चाहता। जब वो खुद मान जाएंगी तब मैं तुम्हें उनके सामने ले आऊंगा। सलमान, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? अगर आंटी को मालूम हुआ तो वो तो मुझे कभी भी कबूल नहीं करेंगी। और अगर हमने कुछ न किया तो वो मेरी जबरदस्ती किसी और से शादी करवा देंगी। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकोगी? मैं तो नहीं कर सकता हिना। सलमान, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, मगर मोहब्बत में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि जब हम शादी करें तो सबके सामने इज्जत के साथ, ना कि छप कर जैसे कोई जुर्म कर रहे हो। ये रिश्ता एतमाद और इज्जत पर होना चाहिए, ना कि खौफ और छुपने पर। मगर हिना, मैं खौफ में नहीं, मोहब्बत में ये कदम उठाना चाहता हूँ। मुझे डर है कि कहीं देर ना हो जाए। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो देर कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर हमने कोई गलत कदम उठाया तो शायद हम खुद अपने रिश्ते को बर्बाद कर दें। हमें सब्र से काम लेना होगा सलमान। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे फैसले पर यकीन करना चाहिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर हमने कुछ न किया तो शायद सब खत्म हो जाए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने उसूलों पर भी समझौता नहीं कर सकती। हमें अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सच्चाई और हिम्मत से काम लेना होगा, ना कि छप कर कोई फैसला करना होगा। सलमान एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है। इसके चेहरे पर शदीद कशमकश के आसार हैं। वो जानता था कि हना ठीक कह रही है, लेकिन इसे अपने फैसले पर शक होने लगा था। वो एक दौराहे पर खड़ा था। मोहब्बत को बचाने के लिए क्या जल्दबाजी करे या सब्र और हिम्मत के साथ हालात का सामना करे। रात गहरी हो चुकी है और सलमान खामोशी से अपने कमरे में टहल रहा है। उसके दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा है। एक तरफ माँ की मोहब्बत और इज्जत है, तो दूसरी तरफ हना के साथ बीते हुए खूबसूरत लम्हा है। वह फैसला करना चाहता है मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। अचानक दरवाजे पर हल्की चिस्तक होती है। सलमान चौंक कर देखता है। दरवाजा खोलते हैं माँ अंदर दाखिल हो जाती है। उनके चेहरे पर नरमी मगर आंखों में एक खास चमक है। माँ अब कुछ परेशान लग रही है। सब खैरियत तो है? बेटा, मैंने तुमसे कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन आज एक माँ होने के नाते तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? यही कि इसका बेटा खुश रहे, कामयाब रहे और एक ऐसा घर बसाए जिसमें इज्जत और सुकून हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचा है और इसीलिए सायरा को तुम्हारे लिए मुंतखब किया है। माँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरे लिए क्या चाहती हैं, मगर मैंने भी अपनी खुशी का फैसला कर लिया है। क्या खुशी सिर्फ एक लड़की के साथ बांधी जा सकती है? बेटा, तुम एक जज्बाती फैसले में अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो। हिना एक जिद्दी, बेवकूफ और नापुख्ता सोच रखने वाली लड़की है जो हमारी रवायात और खानदान के मेयार को नहीं समझती। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? अपने हिना को सही से जानने की कोशिश भी नहीं की। जाना जरूरी नहीं, देखना काफी होता है। इसके पास तुम्हें देने के लिए किया है एक जिद, एक नाफरमानी। क्या तुमने गौर किया कि वो हमेशा अपनी बात पर अड़ी रहती है? कभी तुम्हें और तुम्हारी माँ को समझने की कोशिश की। दूसरी तरफ सायरा को देखो, तुम्हें इज्जत देगी, तुम्हारी माँ की खिदमत करेगी, तुम्हें और हमारे खानदान को आगे लेकर चलेगी। ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए सोचा है सलमान।
मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी? आप कह रही हैं कि खुशी सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं बांधी जा सकती, लेकिन माँ, क्या मोहब्बत को भी आसानी से छोड़ा जा सकता है? मैं हिना से मोहब्बत करता हूँ, ये कोई वक्ती जज्बा नहीं है। मुझे मालूम है कि आप मेरे लिए अच्छा चाहती हैं, मगर क्या मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकता? क्या मेरी खुशी और मेरा इंतखाब अहम नहीं? माँ के अल्फाज सलमान के दिल में गूंज रहे हैं और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा। एक तरफ माँ की बातों में हकीकत है, दूसरी तरफ इसकी अपनी मोहब्बत। क्या सलमान माँ के दबाव के आगे झुक जाएगा या अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए खड़ा होगा? फैसला अब करीब है। सलमान तेज कदमों से आता है और सायरा के सामने खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर बेचैनी और इज़्तिराब है। वो गहरी सांस लेता है और सीधा सायरा की आंखों में देखकर बात शुरू करता है। सायरा, तुम जानती हो कि मैं हिना से मोहब्बत करता हूँ और मेरे लिए इसके बगैर जीना नामुमकिन है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ना ही ये फैसला मेरे लिए काबिल कबूल है। सलमान, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये सब भूलना होगा। मोहब्बत और रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं और मैं तुम्हारी जिंदगी में वो नया मोड़ ला सकती हूँ। ये मुमकिन नहीं सायरा। मोहब्बत कोई वक्ती जज्बा नहीं जो बदल जाए। तुम खुद सोचो, जिस दिल में पहले ही कोई बसा हो वहां कोई और जगह कैसे बना सकता है? तो फिर हल क्या है? हमेशा के लिए अपनी माँ की जिद के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकती हूँ दूर, अमेरिका में, जहाँ ना हिना होगी ना तुम्हारी माँ का दबाव। तुम कहना क्या चाह रही हो सायरा? तुम चाहती हो कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? वो माँ जिसने मुझे पाला संवारा, जिसकी दुआओं से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें अपनी माँ को छोड़ना होगा, लेकिन अगर वो तुम्हारी खुशी को नहीं समझ रही तो तुम्हें भी अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करना होगा। फैसला? फैसला तो मैं कब का कर चुका हूँ सायरा। मेरी माँ मेरी पहचान है और हिना मेरी मोहब्बत। मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ सकता और किसी को खोना मेरे लिए मुमकिन नहीं। तो फिर खुद को धोखा देना बंद करो सलमान। तुम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, या हिना को चुनना होगा अपनी माँ को। और अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो यकीन मानो मैं तुम्हें इस सब से बहुत दूर ले जाऊंगी। और क्या वो तुम्हें हिना के साथ कबूल कर लेगी? सोच लो सलमान, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो, मगर शर्त यह है कि तुम्हें अपना माजी पीछे छोड़ना होगा। मेरा माजी नहीं, मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल भी हिना के साथ है। तुम चाहे जो भी कहो, मैं अपनी मोहब्बत और अपनी माँ दोनों को साथ रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सायरा खामोश हो जाती है। सलमान के चेहरे पर अज़्म और सच्चाई झलक रही है। सायरा जान चुकी थी कि इसका मंसूबा इतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। क्या वो सलमान को बदलने में कामयाब होगी, या सलमान अपनी मोहब्बत और माँ दोनों को साथ रखने की जंग जीत सकेगा? नरगिस बेगम खड़ी सब कुछ सुन रही है। जैसे ही सायरा कहती है कि वो सलमान को उसकी माँ से दूर ले जाएगी, नरगिस बेगम के सब्र का पैमाना लबरीज हो जाता है। वो दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हो। सायरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ भड़काने की? मैंने तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा समझा, लेकिन तुम तो आते ही हमें माँ बेटे को अलग करने की साजिशें करने लगी। साजिश? मैं साजिश कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ सलमान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोच रही हूँ। मैं इसे अमेरिका ले जाना चाहती हूँ ताकि वो वहाँ अपनी जिंदगी बना सके, आगे बढ़ सके। बेहतर मुस्तकबिल? बेहतर मुस्तकबिल माँ से दूर होकर बनता है। तुम सलमान को तरक्की देना चाहती हो या हमेशा के लिए मुझसे दूर करना चाहती हो? आप हमेशा हर बात को अपने लिहाज से क्यों देखती हैं? मैंने कब कहा कि सलमान आपको छोड़ दे? मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करे, किसी के दबाव में ना रहे। फैसले खुद करने के नाम पर तुम इसे माँ से अलग करने की कोशिश कर रही हो। जो लड़की शादी से पहले ही शौहर को माँ से दूर करने की बात करे, वो घर बसाने नहीं, उजाड़ने आती है। मैं सलमान को माँ से अलग करने नहीं आई। मैं तो चाहती हूँ कि वो एक आज़ाद और खुशहाल जिंदगी गुजारे। अगर वो अमेरिका में सेटल हो जाए तो इसमें बुरा क्या है? आज़ाद जिंदगी?
वो जिंदगी जो माँ के बगैर हो, जिसमें खानदान की इज्जत, रवायात और रिश्तों की कोई कीमत ना हो। तुमने आते ही साबित कर दिया कि तुम इस घर के लायक नहीं हो। मैं इस घर के लायक नहीं, तो फिर मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों था? क्यों मुझे ये यकीन दिलाया कि मैं इस खानदान का हिस्सा बन सकती हूँ? मैं तुम्हें अपनी बहन की बेटी समझती थी, इज्जत देती थी, लेकिन तुमने तो आने से पहले ही मेरे बेटे को मुझसे दूर करने का फैसला कर लिया था। मैं कभी भी तुम्हें सलमान की जिंदगी में जहर घोलने नहीं दूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं जहर हूँ तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन सलमान को भी सोचना होगा कि वो हमेशा आपकी मर्जी पर चलेगा, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करेगा। नरगिस बेगम की आंखों में गुस्से के साथ साथ अब मायूसी भी नुमायां थी। सलमान के चेहरे पर उलझन थी। वो कभी सायरा को देखता, कभी अपनी मां को। सायरा के अल्फाज ने वो पर्दा चाक कर दिया था जो सलमान के जहन पर था। क्या सलमान अब सायरा को पहचान चुका था? क्या वो मां की मोहब्बत और सच्चाई को समझ पाएगा, या फिर उसके दिल में अभी भी कोई शक बाकी था? कहानी एक अहम मोड़ पर आ चुकी थी और अब फैसला सलमान को करना था। सलमान बेटा, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। माँ, आपने बुलाया? क्या हुआ? मैंने हमेशा यही सोचा कि एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे को और कौन समझ सकता है, कौन उसके लिए बेहतर फैसला कर सकता है। मैंने खुद को कभी गलत नहीं समझा था, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मैंने अपनी जिद में तुम्हारी खुशियों को नजरअंदाज कर दिया। माँ, मैंने कभी भी आपके फैसलों पर सवाल नहीं उठाया, न ही आपके इरादों पर शक किया, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब पहली बार मेरे दिल की बात सुन रही है। जब मैंने सायरा का इंतखाब किया तो मुझे लगा था कि वो हमारे खानदान के मेयार के मुताबिक है, कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि दिल की सच्चाई और नीयत की खूबसूरती किसी खानदान के मेयार से ज्यादा अहम होती है। माँ, हिना ने हमेशा आपकी इज्जत की। इसने बगैर किसी हक के आपको माँ कहा, बगैर किसी लालच के आपके कदमों में झुक गई, बगैर किसी उम्मीद के आपसे मोहब्बत की, और आपने इसे कभी कबूल ही नहीं किया। मुझे आज एहसास हो गया है कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती बेटा। इसे ना खरीदा जा सकता है, ना किसी पर थोपा जा सकता है। सायरा शायद हमारे मेयार पर पूरा उतरती थी, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं बनी थी। मैंने एक ऐसी लड़की को नजरअंदाज कर दिया जो न सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है, बल्कि इसने बगैर किसी लालच के हमेशा मेरी इज्जत की, मुझे माँ का दर्जा दिया, और मैंने इसे कभी माँ की मोहब्बत नहीं दी। मैं जानता हूँ कि आपका हर फैसला मेरे भले के लिए था, लेकिन मोहब्बत को कभी भी किसी मेयार, किसी दौलत या किसी खानदान के नाम से नहीं तोला जा सकता। मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है, खालिस, बेगरज, सच्ची। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सायरा से शादी के लिए मजबूर किया, ये सोचे बगैर कि तुम्हारी खुशी किसमें है। मैंने सायरा के चमकदार अल्फाज और अमीरी को देखा, लेकिन मैं इसके दिल की नीयत को नहीं समझ सकी, और आज जब हकीकत मेरे सामने आई तो मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। और सायरा ने आते ही हमारे दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश की, जबकि हिना ने हमेशा कोशिश की कि मैं आपके करीब रहूं, आपके फैसलों की इज्जत करूं और आपको हमेशा अपनी मां मानूं। अगर आज भी आपको अपनी गलती का एहसास ना होता तो शायद मैं सारी जिंदगी एक कश्मकश में ही रहता। मैंने हमेशा तुम्हारी बेहतरी चाही, लेकिन शायद मैं इसमें नाकाम रही। मैं चाहती थी कि मेरी पसंद तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो, लेकिन आज मैं जान चुकी हूँ कि असल खुशी किसी की पसंद से नहीं, बल्कि दिल के रिश्ते से जड़ी होती है। माँ, अगर आप सच में अपनी सोच बदल चुकी हैं, अगर आप वाकई हिना को दिल से कबूल करने के लिए तैयार हैं, तो ये मेरे लिए किसी ख्वाब के पूरा होने जैसा है। मैं हिना से मोहब्बत करता हूँ, और अब अगर आपका आशीर्वाद भी मेरे साथ है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी जाकर हिना को ले आता हूँ, लेकिन माँ, आप वादा करें कि आप इसे अपनी बेटी की तरह अपनाएंगी दिल से, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि इसके लिए भी जो शुरू से ही आपकी बहू बनने की ख्वाहिश रखती थी, सिर्फ इस उम्मीद पर कि आप इसे कबूल कर लेंगी। सलमान, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अगर तुम अभी भी मेरी माँ होने की इज्जत करते हो तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर एक मौका मांगती हूँ। जाओ, अपनी हिना को ले आओ, मैं इसे अपनी बहू के तौर पर अपनाने के लिए तैयार हूँ दिल से।
नरगिस बेगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सलमान के हाथ थाम कर सर हिला देती है। सलमान खुशी और जज्बात से मगलूब होकर अपनी माँ के गले लग जाता है। आखिरकार रिश्तों की ये जंग खत्म हो चुकी थी और मोहब्बत जीत चुकी थी।